ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه فقه الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا وقت موجود ولا أجل ممدود فدنا الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فوحدها بالسهول ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام والصلاة والسلام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المؤمنين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صلى الله على محمد کلمہ ہم خدا کا پڑھتے ہیں، امتی نبی کے کہلاتے ہیں، شیعہ مولا علی کے ہیں، شیعہ جناب سیدہ کی ہیں، عزادار مولا حسین کے ہیں، اور فرقہ میں ہے جعفری، فرقہ میں ہے جعفری، اور یہ جعفری کہنے کا مزہ ہی اس وقت آئے گا جب قیامت کے روز فرشتہ بندے کو روک کر پوچھے گا بتا تیری فرقہ کیا ہے، بندہ کہے گا فرقہ جعفری ہے، تو عجب نہیں فرشتہ کی جواب میں کہے جعفری ہے۔ سورہ زوحہ کی آیت نمبر 5 کو سرنامہ شکر قرار دیا، جس سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرما رہا ہے ان قریب تمہارا اے حبیب، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ اپنے رسول کو راضی کرنا چاہ رہا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم اتنا عطا کریں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا حبیب ہم آپ کو عطا کریں گے، یعنی عطا ہوگی اس کے بعد آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کچھ ایسا عطا کیا کہ اس عطا کے بعد پیغمبر خدا سے راضی ہو گئے۔ اب کیا عطا کیا اللہ نے اپنے نبی کو کہ پیغمبر راضی ہو گئے؟ ہم نے قرآن کھولا اور تلاش کرنا شروع کیا، سورہ کوثر کے علاوہ یہ اعلان کہیں نظر نہیں آیا جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے سیدہ کی صورت میں آپ کو کوثر عطا کیا۔ کی عظمت پہ آواز بلند صلوات۔ تو پیغمبر کب راضی ہوتے ہیں؟ سیدہ کے ملنے پر پیغمبر راضی ہوتے ہیں، اور سیدہ کی مرضی ملنے پہ اللہ بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب پیغمبر راضی ہوتے ہیں۔ پیغمبر راضی ہو گئے، اللہ راضی ہو گیا۔ اب آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ یہ بتائیے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کو راضی کر لینے سے اللہ راضی ہو گیا، اب کیسے پتہ چلے اور کون راضی؟ اب رسول کو راضی کرنا ہے، کیسے پتہ چلے رسول کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے؟ نبی نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تو رسول کے پاس جب آئے تو رسول نے کہہ دیا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک سیدہ راضی نہ ہو، اللہ اس وقت تک راضی نہیں جب تک رسول راضی نہ ہو، رسول اس وقت تک راضی نہ ہو جب تک سیدہ راضی نہ ہو۔ تو کلیہ مل گیا نا کہ خدا کو راضی کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو رسول کو راضی کرو تو خدا راضی ہو جائے گا، سیدہ کو راضی کرو تو خدا راضی ہو جائے گا۔ بلکہ معیار یوں ہے کہ سیدہ راضی ہوں گی تو رسول راضی ہوں گے، رسول راضی ہوں گے تو خدا راضی ہوگا۔ تو یہ معیار مل گیا، اب جس سے سیدہ راضی ہو وہی فقط رضی اللہ رضایت کے معیار کو بیان کرنا ہے۔ ایک معیار مل گیا کہ رسول کی رضا اللہ کی رضا، جناب سیدہ کی رضا اللہ کی رضا۔ اب قرآن ہی سے یہ معیار تلاش کرنا ہے کہ کیا قرآن نے اللہ نے صحابہ کرام کی رضا کو اپنی رضا کہا ہے یا نہیں، ازواج رسول کی رضا کو اپنی رضا کہا ہے یا نہیں، اہل بیت کی رضا کو اپنی رضا کہا ہے یا نہیں۔ اب یہ قرآن سے معیار تلاش کرنا ہے، تو اس میں اللہ نے جب بیان فرمایا سورہ توبہ آیت کا نشان 62، جس میں اللہ نے بیان فرمایا یحلفون باللہ لکم لیرزقکم واللہ ورسولہ احق ان یرزقوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ
झूठी कस्में खाते हैं। कौन लोग? मुनाफिकीन की बात कर रहा है। यालिफूना बिल्लाहि लकुम लियुर्जुकुम, ये मुनाफिकीन अल्लाह की झूठी कस्में खाते हैं, लियुर्जुकुम, ताकि ये तुम सबको राजी करें। ये तुम सब कौन? ये उस जमाने के मुसलमान, ये है उस जमाने के मुसलमान। मुनाफिकीन झूठी कस्में खाते हैं ताकि ये सहाबा को राजी करें। उस जमाने के मुसलमान कौन है? वो सहाबा इकराम है। उस जमाने के मुसलमान सहाबा इकराम क्या झूठी कस्में खाते हैं ताकि हम सहाबा को राजी कर लें। अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया कि इनको चाहिए कि सहाबा को राजी ना करें। क्या? यालिफूना बिल्लाहि लकुम लियुर्जुकुम वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्जुहु, अल्लाह ने फरमाया कि इनको चाहिए कि ये अल्लाह को राजी करते या अल्लाह के रसूल को राजी करते, यानी सहाबा को राजी कर लेने से अल्लाह कह रहा है हम राजी नहीं होते। हम राजी कब होंगे? जब हमारा रसूल राजी होगा। हमें राजी करना है तो हमारे रसूल को राजी करो। सहाबा के राजी होने से हम राजी नहीं होते, तो खुदा ने पहला मयार दे दिया कि सहाबा की रिजा और है, अल्लाह की रिजा और है। सहाबा को राजी कर लेने से अल्लाह राजी नहीं होता। अल्लाह राजी होगा रसूल को राजी करने के, रसूल को राजी करने से। पहला मयार कि सहाबा की रिजा, अल्लाह की रिजा नहीं। अब दूसरा, अज़वाजे रसूल, क्या इनकी रिजा अल्लाह की रिजा है या नहीं? अब सूरह तहरीम पहली आयत, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्ज़ाता अज़वाजिक, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए नबी आप उस चीज को अपने लिए क्यों हराम करते हैं जो हमने हलाल किया। अगर किसी ज़ौजा की ऐसी फरमाइश है तो उस फरमाइश को रिजेक्ट कर दीजिए, उस फरमाइश को मानने की जरूरत नहीं है। फरमाया तब्तगी मर्ज़ाता अज़वाजिक, अपनी ज़ौजा को राजी करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कह रहा है कुरान में कि अपनी ज़ौजा को राजी करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर अज़वाजे रसूल की रिजा अल्लाह की रिजा होती तो अल्लाह कहता हबीब इन्हें राजी कर लीजिए, हम राजी हो जाएंगे। अल्लाह ने कह दिया तब्तगी मर्ज़ाता अज़वाजिक, इनको राजी करने की जरूरत नहीं है। नई बात आ रही, नई बात आने दो, इनको राजी नहीं करना। तो खुदा ने दूसरा मायार यहाँ दे दिया कि याद रखना अज़वाजे रसूल की रिजा और है, खुदा की रिजा और है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आवाज़ बुलंद अल्लाह की रिजा नहीं, अज़वाजे रसूल की रिजा अल्लाह की रिजा नहीं। अब तीसरी चीज रह गई अहले बैत। अब क्या अहले बैत की रिजा अल्लाह की रिजा है या नहीं? अब तलाश ये करना है, ये भी कुरान से तलाश करना है कि क्या अहले बैत की रिजा को अल्लाह ने अपनी रिजा कहा या नहीं। क्योंकि क्या साहब रसूल की रिजा अल्लाह की रिजा ना बन सकी, अज़वाजे रसूल की रिजा अल्लाह की रिजा ना बन सकी, मगर पूरी तारीख आदम व आलम में एक घराने का एक फर्द ऐसा भी नजर आया है कि जो रात को बिस्तर पे सोता है, मर्जी रात को बिस्तर पे सोता है, मर्जी इलाही खरीद लेता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 207, वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अल्लाह ने फरमाया सुनो बंदगाने खुदा में एक ऐसा भी है जो अपने नफ्स को बेच देता है, मर्जी इलाही खरीद लेता है। शब इज्जत यही तो हुआ, डायरेक्ट सौदा हुआ अल्लाह से सौदा हुआ। क्या सौदा हुआ? नफ्स बिका, मर्जियां आ गई, सौदा हो गया। अल्लाह ने नफ्स खरीद लिया, मर्जियां दे दी, नफ्स बिक गया, मर्जियां आ गई। अब समझ में आया, जिस अली के नफ्स की कीमत मर्जी इलाही हो वो अली क्या होगा? नफ्स की कीमत मर्जी इलाही है। अब हुक्म आया शब हिजरत का। अब क्या किया? जिब्राइल ने आके रसूलुल्लाह को खबर सुनाई कि भाई हिजरत कीजिए, हुक्म आया है कि आजाद हिजरत करके जाइए, अपने बिस्तर पे किसी को सुला दीजिए। रसूल को हुक्म आया हिजरत का। अब रसूल ने कहा या अली मुझे खतरा है, आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए। अब मौला ने क्या सवाल किया? या रसूलल्लाह क्या मेरे आपके बिस्तर पे सोने से आपकी जान बच जाएगी? अपना नहीं पूछ रहे मेरा क्या बनेगा, कह लगे कि आपकी जान बच जाएगी या नहीं। नबी ने कहा या अली मेरे बिस्तर पे सो जाइए, मेरी जान बच जाएगी। मौला ने सुना, हुक्म की तामील शुरू कर दी। अच्छा ये मौला अली को क्यों सुलाया रसूल ने? किसी और को भी सुला सकते थे, बहुत सौ को सुला सकते थे, मगर बिस्तर पे किसी और को नहीं सुलाया। क्योंकि नबी को मालूम था कि अगर किसी और को यहाँ बिस्तर पे सुला दिया तो सुबह बिस्तर पे गायब हो जाएगा। काफिरों की अमानत रसूल के पास थी, और ये भी कि 40 काफिरों ने चारों तरफ से घिरा हुआ था। उन्होंने पूरी साजिश की थी कि आज माज़अल्लाह रसूलुल्लाह को कत्ल कर देंगे। अब 40 कबीले के मुसलमान
ہر قبیلے سے ایک ایک فرد کو چن لیا کہ آج رات نبی کو قتل کرنا ہے. ایک ایک فرد کو چن لیا. اب سب حصار میں آ گئے کہ آج قتل کرنے کا پورا ارادہ ہے. اب نبی نے کیا کہا؟ مولا کو سلایا. باقیوں کو کیوں نہیں سلایا؟ ایک تو وجہ یہ تھی. دوسری وجہ کیا؟ کیونکہ ہر رات میں بستر پہ سونا. کیا تھا؟ رات میں سونا ہے بستر پہ. اب بتا دیا کہ چاروں طرف سے تلواریں حصار میں ہیں, تلوار چاروں طرف سے ہیں. اچھا ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی کو بنگلے میں کہا جائے کہ یہ بنگلہ ہے, اس میں اے سی ہے, یہ سب کچھ مطلب سب آسائشیں تمہارے پاس ہیں, یہاں سو جاؤ, اور رات میں کسی بھی وقت تم پر حملہ ہو جائے گا, تو کوئی سوئے گا؟ کوئی نہیں سوئے گا. منع کر دے گا کہ معاف کرو بنگلہ بھی رکھ لو, ہم نہیں سوئیں گے. اچھا ایک تو بات یہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کو بہت ہی زیادہ سونے کی عادت ہو, بہت زیادہ سوتا ہو, سب سے زیادہ نیند دیتا ہو, اور اس کو بتا دیا جائے کہ آج تم سو کے تم پہ رات میں حملہ ہو جائے گا, تو اس موقع پہ تو آتی ہوئی نیند بھی بھاگ جاتی ہے. اور رسول کہہ رہے ہیں علی آپ سو جائیے. اور وہ علی جو رات بھر خدا کی عبادت کرتے تھے, 1000 رکعت پڑھتے تھے, وہ علی جن کو سونے کی عادت ہی نہیں تھی, سونے کی عادت نہیں. اب جس بندے کو سونے کی عادت نہ ہو اور اسے کہا جائے کہ بستر پہ سو جاؤ, کتنا مشکل مرحلہ ہے. مولا کو حکم ہوا سو جائیے, مولا بستر پہ سوئے, کیونکہ کہا سو جائیے. اب بات یہ تھی سونا لازمی تھا, مولا جی کو بستر پہ سلانا بہت ضروری بن گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ آیت الکرسی میں اللہ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. اللہ کو نیند نہیں آتی. وہ علی نہیں سوتا, فرش پہ یہ علی نہیں سوتے. اب کیا کیا؟ اب شب ہجرت سجائی اسی لیے کہ آج علی کو بستر پہ سلا دیا تاکہ زمانے والوں کے سامنے ایک معیار نکل آئے کہ یاد رکھنا جو سو جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, اللہ نہیں. راتوں کو علی جاگے تو خالق نے یہ سوچا فرش شب ہجرت بچھانا ہی پڑے گا, چھن نہ جائے مجھ سے میرا وصف خدائی, ایک شب کے لیے اسے سلانا ہی پڑے گا. مولا کی عظمت میں باواز بلند صلوات. آگے امانتیں ہیں کافروں کی رسول اللہ کے پاس. امانتیں لی, کہیں یار یہ کافروں کی امانتیں یہ آپ رکھ لیجیے, امانتیں دے دی. اچھا یہ کن کافروں کی امانتیں؟ وہی کافر جو مارنے کے لیے کھڑے ہیں, ابھی رسول کے دشمن بنے وہ کافر, انہی کی امانتیں رسول کے پاس ہیں. کافر ہے, جانتے ہیں کہ یہ صادق و امین ہے, امانتیں رکھوا دی. اب رسول مکہ چھوڑ رہے ہیں, امانتیں دے رہے ہیں مولا علی کے ہاتھوں میں, محفوظ ہاتھوں میں امانتیں دے کے مکہ چھوڑ رہے ہیں. تو جو نبی ایک رات کے لیے مکہ چھوڑتے وقت کافروں کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا, وہ دنیا چھوڑتے وقت دین کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں کیسے سبحان اللہ کبھی امانتیں آگئی. اور اچھا کیا کافروں کے رسول سے تعلقات اچھے تھے؟ وہ جو قتل کرنے کے تعلقات اچھے تھے؟ تعلقات تو اچھے نہیں تھے. تو کیا امانتوں کا امین ہونا تعلقات کے اچھے ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں. امانتوں کا امین ہونا تعلقات کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ نبی کے ظرف کی بلندی کی دلیل ہے. بس یہی وجہ ہے کہ دوسروں کو مسئلے بتا کر ہلاکت سے بچا لینا بھی ظرف کی بلندی کی دلیل ہے, تعلقات کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے. آیا حکم, اب رسول چلے, مولا کو حکم کر کے بستر پہ سو جائیے. اب علی بستر پہ سونے لگے, اور سب سے پہلا سجدہ شکر تاریخ میں مولا علی نے کیا. سب سے پہلا سجدہ شکر مولا علی نے کیا. اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا بہت سے لوگ کیوں سجدہ شکر نہیں کرتے, کیونکہ اس کی ابتدا مولا علی سے ہوئی. مولا نے سجدہ شکر کیا, اب رسول چلے. اب راستے میں کیا حالات ہوئے, کیا واقعات پیش آئے, اب رسول چلنے لگے. چلتے چلتے ایک مقام پہ آئے. پہلے تو جب گھر سے نکلے تو ایک مرتبہ مٹی اٹھائی, کافروں کی طرف اچھال دی. کافروں کو نبی جاتے ہوئے نظر نہیں آئے. مٹی کو کہتے ہیں تراب, مٹی کو کہتے ہیں تراب. ایک مٹھی مٹی اٹھائی, کافروں کے سامنے اچھال دی. کافروں کو نبی نظر نہیں آئے. تو جب کافر ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہ کر سکے تو اپنا تراب کا مقابلہ چلے. راستے میں پہنچے, دیکھا کہ اچانک کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے کہ کوئی آ رہا ہے. اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک صاحب آ رہے تھے. اب ہوا کیا, جیسے ہی دیکھا کہ صاحب آ گئے, اب نبی کو پتا ہے کہ اگر اس کو یہیں چھوڑ دیا اور میں چلا گیا, پیچھے جا کے مقبری کر دے گا کہ نبی تو سو نہیں رہے, بستر پہ کوئی اور سو رہا ہے, نبی تو سامنے جا رہے ہیں. اب اس موقع پہ نبی نے کیا کیا, ہاتھ پکڑا, ساتھ چل دو. اس وجہ سے نبی نے ساتھ لے لیا تاکہ مقبری نہ کرے. اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ بھئی نبی نے اس کو ساتھ اس لیے
रोशनियां मुझे नहीं मिलती थी, रात में नूर मुस्तफा से वो वाह, वाह। रोशनी मिल जाती थी। वाह, वाह। और मौला अली और रसूल के नूर की कैफियत एक थी। तो बिस्तर पे अली को सुला दिया ताकि काफिर मुतमईन हो जाए, उनके नूर एक जैसा है। वाह, वाह, अब वाह। नबी चलेंगे तो नबी का अपना नूर भी तो निकलेगा। वहां अली को बिस्तर पे सुला के काफिरों को मुतमईन कर दिया। अब नबी जब कुछ जाएंगे तो नूर चारों तरफ फैलेगा, तो काफिर पहचान लेंगे अरे ये तो नूर इधर जा रहा है, तो ये बिस्तर पे कौन है। इसीलिए नबी ने किसी ऐसे को ले लिया जो इतना तारीकी का मुरक्कब हो, तारीकी का मुजस्समा हो, वाह। जब वो रसूल के साथ साथ चले तो रसूल का नूर छुपता चला जाए। वाह, 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 वाह। लेके आ गए, जैसे ही आए रसूल गार में चले गए, साथ में वो भी गार में आ गए। अल्लाह ने हुक्म दिया मकड़ी को, मकड़ी ने आके जाला बना दिया, जाला बना दिया, जाला बना दिया मकड़ी ने आके। अनकबूत कहते हैं मकड़ी को। अल्लाह ने मकड़ी के नाम पे कुरान में एक सूरा रख दिया। नबी की मदद की थी, अल्लाह ने नाम पे सूरा रख दिया। तो इतना उसूल भी पता चल गया कि अगर कोई नबी की मदद करे तो अल्लाह उसके नाम पर सूरा भी उतार देता है। अगर गार में किसी ने मदद की होती तो कोई आयत तो आती। अच्छा, ये गार में गए, कुछ देर क्या गुजरी थी कि गार से रोने की आवाज आने लगी। क्या हुआ, सांप ने काट लिया था। अब वो गार में रो रहे थे, सांप ने काट लिया था। सांप ने काटा, रोने लगे। अब दो वजह थी, एक तो वो ज्यादा इसलिए रो रहे थे ताकि बार बार को पता चल जाए गार में कोई है। सांप ने काटा, रोना शुरू हो गए। अल्फाज बदल के कहूं कि आस्तीन के सांप को सांप ने काट लिया। वाह, 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 वाह। सांप से मार खाने वाले और होते हैं, झूले में कल्ला इश्तर को वाह, 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 वाह। सांप ने काटा, रोना शुरू हो गए। अच्छा, जब जनाब यूसुफ को कुएं में फेंका गया था तो वहाँ अशरातुल अर्श सबने जब कहा ना कि आ गया शिकार, हमला करो, सांप आगे बढ़ा। सांप ने सबको मना करके कहा खबरदार ये सिद्दीक है, इस पर हमला नहीं करना। कहा ये सिद्दीक है, इस पर हमला नहीं करना। तो इतना उसूल वहां से हमें पता चल गया कि जो सिद्दीक होता है उस पर सांप हमला नहीं करते। वाह, 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 वाह। जो सिद्दीक होता है उस पर सांप हमला नहीं करते। कहा ये सिद्दीक है, इस पे हमला ना करना। तो एक बात पता चल गई, सिद्दीक पे सांप हमला नहीं करते। अब अगर किसी पे सांप ने हमला किया तो मानो वो कुछ भी होगा, सिद्दीक नहीं होगा। और दूसरी बात ये, जनाब यूसुफ कुएं में थे तन्हा, साथ में कोई बचाने वाला भी नहीं, सांप ने हमला भी नहीं किया क्योंकि सिद्दीक है, बचाने वाला भी कोई नहीं। और यहाँ मामला है रसूल बराबर में बैठे हैं, तो ये उसूल भी पता चल गया, सिद्दीक तन्हा कुएं में भी हो तो सांप छेड़ते नहीं, झूठा नबी के बराबर में भी हो तो सांप छोड़ते नहीं। गार के वाक़यात। अब शब इज्जत का असल वाक़या क्या था? अब हुआ क्या, अल्लाह ने जिब्रील और मिकाईल को बुलाया। नूरुल अब्सार किताब का नाम सफ़ा नंबर 96 में ये रिवायत लिखी है, और ये नाबिल मवत्ता के सफ़ा नंबर 92 पे ये शब इज्जत का वाक़या लिखा है। अब हुआ क्या कि अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील और मिकाईल को कि मैं तुम दोनों को आपस में एक दूसरे का भाई बनाऊंगा। अल्लाह ने किसको भाई बनाया? जिब्रील और मिकाईल को दोनों को आपस में भाई बनाया, और कहा कि मैंने तुम दोनों में से एक की उम्र को ज्यादा रखा, एक की उम्र को कम रखा, एक की जिंदगी ज्यादा है, एक की जिंदगी कम है। अल्लाह ने ये नहीं बताया कि मैंने किसकी जिंदगी को ज्यादा रखा, किसकी जिंदगी को कम रखा, वरना इम्तिहान खत्म हो जाता। अब कहा अल्लाह ने तुम ये बताओ तुम में से कौन है जो अपने भाई पे अपनी जान कुर्बान करेगा। अब सन्नाटा छा गया। अब दोनों कहने लगे परवरदिगार अगर तेरा हुक्म है तो हम हाजिर हैं, और अगर हमारा इख्तियार है, हमारी मर्जी पे छोड़ा है तो ये काम हमसे नहीं हो सकता। अल्लाह ने क्या कहा कि तुम आखिर अबू तालिब के लाल अली जैसे क्यों ना हो सके। फिर इशारा किया नीचे, देखो जमीन की तरफ, मैंने इनको भी आपस में भाई बनाया है। फरमाया मोहम्मद और अली को भी मैंने आपस में भाई बनाया है, मगर देखो कैसे छोटा भाई अपने बड़े भाई पे अपनी जान कुर्बान कर रहा है। क्या ये काम तुम दोनों नहीं कर सकते थे? एक मर्तबा अल्लाह ने दोनों मलाइका से कहा जाओ जमीन पे, जाओ जमीन पे और रात भर उनकी हिफाजत करो। क्या अल्लाह ने सजा के तौर पे भेजा था? अल्लाह ने सजा के तौर पे नहीं भेजा था। अब क्योंकि उनकी मार्फत बढ़ चुकी थी, अब मार्फत बढ़ चुकी थी तो इसीलिए भेजा कि जाओ मार्फत और बढ़ाओ। उस वक्त तसव्वुर क्या था? मलाइका का तसव्वुर इबादत। वो समझते थे कि नमाज पढ़ना इबादत है, तस्बीह करना इबादत है, तो सजदा करना इबादत है, रुकू करना इबादत है। उस वक्त तक उनके तसव्वुर इबादत में ये चीज शामिल नहीं थी कि अपनी जान अपने भाई पे कुर्बान कर देना इबादत है। मगर शब हिज्रत के वाक़े से अल्लाह ने
इनका झूला झुलाओ तो इनकार नहीं करेंगे। अब अगर कहा जाए सैयदा की चक्की चलाओ तो इनकार नहीं करेंगे। और अब अगर कहा जाए इनके दर पे रोटियां मांगने जाओ तो इनकार नहीं करेंगे। मौला की अजमत पे आवाज़ बुलंद अब दोनों को जमीन पे भेजा। आए कहाँ? एक आए मौला के सर की तरफ, एक आए मौला के पैरों की तरफ। जिब्राइल आए मौला के सर की जानिब, मीकाईल आए मौला के पैरों की जानिब। तो यहाँ से इतना उसूल भी पता चल गया, जितना अली का सर बुलंद है उतना ही अली के पैर भी बुलंद है। एक आए मौला के सर की जानिब, दूसरे आए मौला के पैर की जानिब। और दूसरा उसूल ये भी पता चल गया कि जब यहाँ वालों की मेराज हो तो वहाँ बुलाया जाता है, और जब वहाँ वालों की मेराज हो तो अली के पास भेजा जाता है। अब दोनों आए और दोनों बैठे हुए आपस में कलाम करने लगे और कहने लगे फकिर फकिर जबना अबी तालिब युबाहिल्लाहु बिकल मलाइका, मुबारक हो ऐ अबू तालिब के लाल, आप जैसा कौन हो सकता है? अल्लाह हम मलाइका पर फख्र कर रहा है कि अबू तालिब के लाल आप जैसा कौन हो सकता है। बस इतना कहना था। उसी मौके पे अल्लाह ने आयत उतार दी, व मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। बंदगाने खुदा में एक ऐसा भी है जो नफ्स बेच देता है, मर्ज़ी इलाही को खरीद लेता है। अली का नफ्स गया अल्लाह के पास, मर्जियां आ गई अली के पास। अब सवाल यह है कि अल्लाह को क्या जरूरत थी नफ्स खरीदने की? शब और सारी मर्जियां दे दी, जरूरत क्या थी? जरूरी नहीं है कि चीज अपनी जाती इस्तेमाल के लिए खरीदी जाए। मिसाल के तौर पे ये तस्वीर है, ऐसी मैं तस्वीर एक और खरीद लूं तो किसी को इतराज होगा? नहीं, मेरी मर्जी, मैंने एक ऐसी तस्वीर एक और खरीद ली, हो सकता है मैंने खरीदी मैं किसी दोस्त को तोहफे में दे दूं। ये भी मिसाल हो सकती है कि किसी को तोहफे में देने के लिए कर दी। अल्लाह को नफ्स की क्या जरूरत थी? अल्लाह ने शबे हिजरत अली का नफ्स खरीद के प्रिजर्व कर दिया, महफूज कर लिया कि जब मुबाहिला में नबी को नफ्से नबी की जरूरत पड़ेगी तो अली है जो नफ्से रसूल बन के जाएगा। वो अली शबे हिजरत नफ्सुल्लाह बना, मुबाहिला में नफ्से रसूलुल्लाह भी बन गया। नफ्स चला गया अल्लाह के पास। जब ये नफ्स का काम क्या है? इंसान आंखों से, आंख वसीला है, देखता नफ्स है, आंख है वसीला, सुनता नफ्स है, कान है वसीला, बोलता नफ्स है, जबान है वसीला। सारे काम होते हैं नफ्स के जरिए। आंख है वसीला, कान है वसीला, जबान है वसीला। अल्लाह ने शबे हिजरत अली का नफ्स खरीद लिया। अब जब अली का नफ्स वहाँ है, इंसान सारे काम करता है नफ्स के जरिए, बोलता है तो नफ्स के जरिए, सुनता है तो नफ्स के जरिए, सुनता है तो नफ्स के जरिए, चलता है तो नफ्स के जरिए। सारे काम होते हैं नफ्स के जरिए। अली के पास तो अब नफ्स रहा नहीं, नफ्स गया अल्लाह के पास। अब जब नफ्स अल्लाह के पास है तो देखेंगे अली, आंख कहलाएगी ऐनुल्लाह, बोलेंगे अली, जबान कहलाएगी लिसानुल्लाह, सुनेंगे अली, कान कहलाएंगे उस्तुल्लाह, रहमत की निगाह करेंगे अली कहलाएगा रहमतुल्लाह, मज़हब की निगाह करती बन गया लानतुल्लाह। मेरे बेट के दुश्मनों पे लानत। की शेर सलामती के लिए परवरदिगार नजर बद से बचाए। बाबा बुलंद इंसान सारे काम करता है नफ्स के जरिए। अब सारे काम होते हैं नफ्स के जरिए। अब नफ्स अल्लाह के पास है। अब जब नफ्स वहाँ है तब इरादा वहाँ होगा, सारा कंट्रोल वहाँ होगा, अमल यहाँ दिखाई देगा। इरादा उधर से होता रहेगा, अमल यहाँ पे होता रहेगा। अब सारा कंट्रोल वहाँ होगा, अमल यहाँ होगा। अब अगर ये किसी को मुसल्ले पे बिठा दे तो खुदा का इरादा होगा, और किसी की उठनी की टांगे काट दे तो खुदा का इरादा होगा। ये वाक़या शब हिजरत का। नबी हिजरत करके आ गए मदीना। ये थी नबी की हिजरत मक्का से मदीना, और वो थी इमाम हुसैन की हिजरत मदीने से करबला। ये नाना की हिजरत, वो नवासे की हिजरत। जब हिजरत आ गई ना, इमाम हुसैन ने हिजरत की, रसूल ने हिजरत की तो कुनबा साथ नहीं गया। इमाम हुसैन ने जब हिजरत की तो पूरा कुनबा साथ गया। करबला के मैदान में काफिला पहुंच गया। जैसे सर जमीन करबला पे पहुंचा, पूरा कुनबा साथ है। एक मर्तबा मौला ने पूछा वहाँ के रहने वालों से कि इस जमीन को क्या कहते हैं? किसी ने कहा मौला इस जमीन को नैनवा कहते हैं। मौला ने किसी और से पूछा कि
हमारी लाशें बिखरी पड़ी होंगी, कहीं अकबर का लाशा होगा, कहीं कासिम के टुकड़े होंगे, कहीं बेनू मोहम्मद का लाशा होगा, कहीं अब्बास का बाजू होगा, कहीं बायां बाजू होगा, कहीं अब्बास का लाशा होगा, कहीं हुसैन का लाशा होगा। ऐ बनी असद वालों, एक गुजारिश ये है कि हमारे लाशों को दफन कर देना और 3 वसीयतें सुन लो। 3 वसीयतें ये हैं कि जब यहाँ हमारे ज़ायरीन आए ना, जब करबला इमाम हुसैन पहुंचे तो वहां पहुंचकर मौला हुसैन ने न जनाब कासिम को याद किया, न जनाब अली अकबर को याद किया, करबला पहुंच के अपने ज़ायरीन को याद किया। कहा है बनी असद वालों, जब मेरे ज़ायरीन आए ना तो पहला काम ये करना, उनको मेरी कब्र का पता बता देना। दूसरा काम ये करना, 3 दिन का उसे मेहमान ठहराना। और तीसरा काम ये करना कि अगर उनसे कोई खता हो जाए तो माफ कर देना, उनसे कोई खता हो जाए तो माफ कर देना। बनी असद ने वादा कर लिया। एक मर्तबा का बनी असद वालों जाओ अपनी खवातीन को भेजो। एक मर्तबा खवातीन आई, मौला ने फरमाया ऐ बनी असद की औरतों, अगर तुम्हारे मर्द लश्कर यजीद के खौफ से हमारे लाशें दफन न करें तो फुरात पे पानी भरने के बहाने आना, एक एक चादर हमारे लाशों पे डालते जाना। एक मर्तबा ये कह के बनी असद की औरतों को रुखसत किया। फिर फरमाया अपने बच्चों को बुलाओ। एक मर्तबा बनी असद के बच्चों को जमा किया। फरमाया ऐ बनी असद के बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप लश्कर यजीद के खौफ से हमारे लाशें को दफन न करे तो खेलने के बहाने आना, हाथों में एक एक मुट्ठी मट्टी लेके आना, हमारे लाशों पे डाल देना। मैं कहूँ मौला जवान बेटा आपका जिंदा है, बनी असद लोगों को वसीयत क्यों कर रहे हैं? अपने बेटे को वसीयत करते। अजब नहीं मौला का जवाब आए, वसीयत करूँ तो कैसे करूँ? हाथों में